Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So yesterday notification of ESIC came. Lot of queries are coming on this notification and I ask you to put all your comments, all your queries on the comment column and gradually we will cover all the aspects. On few aspects I have given you the clarity yesterday, and in this video we will cover another important frequently asked question, whether I can apply from anywhere or I can apply only from my state. So I have made a playlist of all these videos, so you can watch all the videos from this playlist so that you have complete idea about all the aspects of this notification, and thereafter you should fill the form. Now the question arises, can I fill from other states? Answer is yes. But if you will fill from any region, that means you are ready to work in that region. This recruitment is region wise. That means the employment will be available in that region, either in regional office or in the branches of that region. So you have to be very careful while filling the form from which region you should fill. If you are comfortable in a particular area to work, then only you should apply in that area. Because this is a clerical post. It is UDC Steno. And the third post is lower than clerical. Okay. So salary is moderate. It's not very high. So when you seek employment in another state, naturally there are a lot of expenses involved. Because within your state, your expenses are less, your food habits are same. But once you go to the another state, all these expenses goes on rising. So whenever we fill or pick a state, we should keep in mind all possible things. Sometimes out of excitement, a person fills from any other state, but subsequently he finds difficult to work in that area. And then after putting all the efforts, even after doing all the things, get selection, and then he becomes hopeless. So it is always advisable, think wisely. Don't plan according to number of vacancies. That is a bad approach. Some people, they apply from the area where high number of vacancies are there, and then they think my chances will improve, and at present my priority is only job, and subsequently repent. No. Work hard. Try to get clear in your own state. If vacancies are very, very low in your state, then only you should think of other states. But if vacancies are reasonable, always try for your own state. That is my advice. Second, can you apply for more than one state? Answer is no. For one post, you can only put one application. But for every post, you can put an application. So there is a post for UDC, Steno and MTS. You can put separate application for this. But I don't recommend MTS if you are graduates or engineers. It is I don't recommend such type of post. Your focus should be either on UDC and Steno. Steno you should go if you know the stenography. If you have not learned the shorthand or you are not intending to learn the shorthand, then don't apply for Steno. Steno means you should know shorthand. Shorthand means you should be able to take the dictation and write in shorthand. That is the job of Steno. Okay. Sometimes people out of excitement, they fill every post, then they don't know the shorthand, then they lose in this final round and all the effort goes waste. So I am giving you free prior warning that you will only apply for Steno if you are good at shorthand or you are intending to learn shorthand from right now, because it takes 3 to 6 months to learn such type of things, because it is a competition. You have to show speed which is above a level. So it cannot be reached in a few months.
Okay, so you have to be very careful. Some people will say apply everywhere. I always give you right advice at right time, because every application means cost, effort. It should be well thought of. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। ESIC का कल नोटिफिकेशन आया, आपकी बहुत क्वेरीज, और मैंने कहा कि अपनी क्वेरीज आप डालते जाएं कमेंट में। काफ़ी क्वेरीज आ गई है, 1000 से ऊपर क्वेरीज आपकी आ गई है। मुझे खुशी है कि आप लगातार क्वेरीज डालते चले जा रहे हैं, और उसको मैं नोट करता जा रहा हूँ, और उसको धीरे धीरे ग्रुप में बांट के हम हर विषय के ऊपर इसमें वीडियो डालेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए, बुरी नहीं है। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। जो भी आपके प्रश्न है चिंता मत करिए, उसका मैं आंसर दूंगा, पर जितने प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं उसको ध्यान से देख लें। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि एक ही जगह आपको सारे ये वीडियोस मिल जाएंगे ESIC से संबंधित, जहां आप ध्यान से इसको कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन मैं उन लोगों से गदर करके आपको दे रहा हूँ जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं ESIC में। पिछली जो 2019 की सिलेक्शन थी उसमें हमारे काफ़ी चैनल के सब्सक्राइबर पास हुए, तो उनसे मैं टच में हूँ और उनसे इंफॉर्मेशन लेके आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें पहला प्रश्न आपका आ रहा है कि क्या हम दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या केवल अपने स्टेट से? क्या हम एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? पहली चीज़ ये है, कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, मगर केवल एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने ध्यान देना है। ये नहीं है कि आपने A स्टेट भी अप्लाई कर दिया, B भी कर दिया, C भी कर दिया। दूसरी चीज इसमें समझने वाली ये है कि ये रिक्रूटमेंट रीजन वाइज है। जिस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे, जिस रीजन के अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट उसी रीजन के अंदर है। तो अगर आप विलिंग है उस रीजन में काम करने को, उस रीजन की ब्रांचेज में काम करने को, तब आपको उस स्टेट को अप्लाई करना चाहिए। कई बार हम अप्लाई करते समय इमोशनल हो जाते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं, नौकरी चाहिए, कहीं भी मिल जाए, अप्लाई कर देते हैं और बाद में रिपेंट करते हैं। वो जॉब मिल जाती है, वहाँ हम रह नहीं पाते हैं, वहाँ का खाना हमारा डिफरेंट होता है, उस स्टेट के अंदर खर्चे ज़्यादा होते हैं। ये जो पोजीशंस हैं ये कोई बहुत हायर लेवल की पोजीशंस नहीं है, क्लैरिकल पोजीशंस है, तो सैलरी इसमें मॉडरेट ही है। ठीक है, तो कई बार उसमें खर्चा नहीं चलता आदमी का, तो हमें सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। अपने स्टेट में खर्चे कम होते हैं, अपनी सिटी में और भी कम होते हैं, कईयों का अपना मकान होता है, कईयों का वहाँ पर और कंफर्ट्स होते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको अप्लाई करने से पहले सोचने चाहिए। कई बार लगता है ज़्यादा वैकेंसीज है, वहाँ सिलेक्शन हो जाएगी, हमारे स्टेट में कम है, नहीं होगी। अगर बहुत कम वैकेंसीज हैं आपके स्टेट में, तब तो ऐसा विचार आपको लाना चाहिए मन में। अगर ज़्यादा गैप नहीं है वैकेंसीज में, तो हमें ज़्यादा मेहनत करके अपने ही स्टेट में सिलेक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। वो सस्टेनेबल होगी आपके लिए, आप उस जॉब को चला पाओगे। क्योंकि बहुत मैंने देखे हैं ऐसे केसेस, और मैं बार बार ये आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि हमेशा आपकी प्रेफरेंस अपनी स्टेट होनी चाहिए। क्योंकि नौकरी मिलना एक काम है, नौकरी को चलाना दूसरा काम है। नौकरी आपकी चलनी भी चाहिए ना, वो भी आपको साथ साथ सोचना है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा है, क्या हम मोर देन वन पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। UDC के लिए भी, स्टेनो के लिए भी, और MTS के लिए भी। MTS में रिकमेंड नहीं करता, आप क्वालिफाइड लोग हो, बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, क्लरिकल से भी नीचे की पोजीशन है। कई लोग फिर बाद में कर नहीं पाते ये नौकरी, क्योंकि आपकी ईगो आपको अलाउड नहीं करती। बाकी आपका अपना डिसीजन है। इस चैनल का काम है राइट एडवाइस एट राइट टाइम देना। कोशिश आपको करनी चाहिए क्लरिकल या उससे हायर पोजीशंस के लिए कंटेस्ट करने की, क्योंकि क्लरिकल में आप ज्वाइन करते हो तो कुछ सालों बाद आप प्रमोट होकर ऑफिसर बन ही जाते हो। तो इसलिए मैं क्लरिकल और नंबर पोस्ट के लिए ही रिकमेंड करता हूँ। उससे जो लोअर रैंक्स आते हैं मैं अवॉइड ही करता हूँ, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आप शॉर्ट हैंड अभी सीखना चाह रहे हैं या आती है, तभी आपको स्टेनो के लिए एफर्ट करना चाहिए। काफ़ी लोग कह देते हैं अप्लाई कर दो, बाद में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा ही है, थर्ड फेज तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है। बहुत लोग पूरी मेहनत करके उस फेज तक पहुंचते हैं और वहां प्लग हो जाते हैं। अगर आपको
स्टेनोग्राफी आती है, शॉर्ट हैंड आती है, तो स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहिए। या आप अभी से सीखना शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम 3-4 महीने में सीख के तैयार हो जाएंगे कि स्टेनोग्राफी का हम स्पीड अचीव कर लें। स्टेनो का क्या रोल होता है कि एक व्यक्ति डिक्टेशन देता है और आपको शॉर्ट हैंड में उसको नोट करना होता है। तो ये जैसे कि मान लो मैं स्केल फोड़ता तो मेरे पास स्टेनो थी, तो स्टेनो का हमें क्या एडवांटेज होता है कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं, अगर मैं टाइपिंग में जाऊंगा तो वो स्लो होएगी, पर मैं फटाफट बोलता जाऊंगा, स्टेनोग्राफर उसको स्टेनो शॉर्ट हैंड में नोट करता चला जाएगा और फिर वो उसको टाइप करके लाएगा, उसमें मैं करेक्शन कर दूंगा और वो एक चीज़ बन जाएगी। तो जितने भी सीनियर लोग होते हैं वो अपने साथ स्टेनो को अटैच रखते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं होता कि हम डिक्टेशन दें सीधी टाइपिंग के लिए। तो स्टेनो का एडवांटेज क्या होता है, मैं कहीं लेक्चर दे रहा हूँ, अब उसको नोट करना है किसी ने, तो स्टेनो ही नोट करेगा ना, उसको फटाफट नोट करता चला जाएगा। तो जैसे हम जगह जगह लेक्चर लेते थे, उसके सिनॉप्सिस बनाने होते थे, तो हमारी स्टेनो ही बनाती थी वो। तो जो सीनियर लोग होते हैं वो स्टेनो अटैच करके चलते हैं अपने साथ, समझ गए। तो स्टेनो एक जॉब है जब आपको किसी व्यक्ति से डिक्टेशन लेनी है। तो डिक्टेशन लेंगे तो कैसे लिखेंगे, पूरा वर्ड लिखेंगे तो टाइम ही नहीं ना इतना, तो बोलना तो तेज होता है, लिखना स्लो होता है। तो इसमें शॉर्ट हैंड होती है। शॉर्ट हैंड के अंदर हम उसी स्पीड पे लिख पाते हैं जिस स्पीड पे दूसरा आदमी बोलता है, तो स्टेनो उसको बोलते हैं। इसको जरा सा आपको समझना है, क्योंकि जो यंग लोग हैं उनको कम लोगों को पता है स्टेनो का क्या रोल होता है, अप्लाई कर बैठते हैं, बाद में पछताते हैं। तो अगर आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आप इसके लिए जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।